You see, there are many enemies in life. आप देखते हैं अपने जीवन में कई दुश्मन होते हैं. Some enemies are loud and some enemies are even visible. देख कुछ शत्रु जो है बहुत शोर मचाते हैं और कुछ शत्रु दिखाई भी पड़ते हैं. But there are some enemies that are very quiet and very subtle. और लेकिन ऐसे कुछ शत्रु होते हैं जो बहुत ही चुपके से होते हैं, शांत रहे होते हैं. They enter the heart very quietly. और बड़े चुपके से वो दिल में प्रवेश कर जाते हैं. I want you to listen carefully. और चाहते ध्यान से सुने. One such enemy attacks even the lowest cadre in God's kingdom and even the topmost cadre in the kingdom of God. तो हम देखते हैं ऐसा शत्रु जो कि परमेश्वर के राज्य एकदम कम नीचे के स्तर के जो है वर्ग के उनमें समा जाता है, जो ऊपर के स्तर के हैं उनमें भी समाता है. Whether you're a beginner in the kingdom of God, चाहे परमेश्वर के राज्य में देखिए आप शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, or you are a general in the kingdom of या God, फिर आप परमेश्वर के राज्य में एक सेना प्रधान ही this क्यों is ना हो, one enemy ये एक शत्रु that will attack the people. जो लोगों पर हमला करेगा. Whether you're a pastor, चाहे आप एक पासवान हो, whether you're a worship leader, चाहे आप आराधक के अगुवे हो, whether you're just sitting in the pews, it does not matter. This enemy is so dangerous that I want to speak to you about this. फर्क नहीं पड़ता है. ये शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है जिस पे आज चर्चा करने जा रहे हैं. Today I want to talk to you about the spirit of offense. और आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ठेस की आत्मा के बारे में. Offense does not announce itself. और देखिए ये ठेस जो होता है ये खुद का ऐलान नहीं करता. It sits silently in the heart. और ये चुपके से दिल में आ जाता है. And if it is not dealt with, और अगर आप इससे निपटेंगे नहीं, whoever you are, तो जो कोई भी आप क्यों ना हो, it will grow into bitterness. ये कड़वाहट में बदल जाएगा. And it will literally destroy not the other person but you. और यह लगभग देखिए दूसरे व्यक्ति को तो नहीं लेकिन आपको ही ये तबाह करेगा. How many of you following me, church? ये तो समझने के लिए It will not destroy the other person with whom you're offended with, or the organization or whatever. It will destroy you. और देखिए जिस व्यक्ति से आपने ठेस खाया है उस व्यक्ति को या उस संगठन को ये तबाह नहीं करेगा लेकिन ये आपको तबाह करेगा. I was talking to a carpenter पासवान जी किसी कारपेंटर से बात कर रहे थे. and I asked him, I like to speak to professionals और देखिए जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनसे बात करना पसंद है ही नहीं, because professionals always have a different perspective, a different viewpoint. क्योंकि देखते पेशेवर लोगों के पास हमेशा एक अलग ही दृष्टिकोण नजरिया होता है. And I asked the carpenter, he was good at his craft. I asked him, what is the one dangerous thing that you fear as a carpenter? तो इन्होंने उनसे पूछा कि कारपेंटर जो वो बढ़ाई जो थे उनसे पूछे कि खतरनाक चीज क्या है जिससे आप बहुत ही डरते हैं. And he said, और उन्होंने कहा I fear the termite. Dima. मैं दीमकों से बहुत घबराता हूं, डरता हूं. He says, I'm good at my craft, I can do anything, but I fear a termite, because if a termite gets into my work, even the best of work can just be brought down just like that. उन्होंने ऐसा कहा कि मैं दीमकों से बहुत ही घबराता हूं क्योंकि मेरी जो भी बनाई हुई चीजें सबसे बेहतरीन चीजें क्यों ना हो, अगर उसमें दीमक चली जाए तो वो एकदम तबाह हो जाएगी. And the carpenter further said, he says, it works so slowly और फिर आगे उस बढ़ई ने बताया कि ये इतने बहुत ही धीरे से काम करता है that you don't know till the damage has been done. लेकिन आप नहीं जानते कि क्या नुकसान इससे हो सकता है. And he says sometimes you have to replace the entire portion. Unfortunately, in some places the damage is too far to even be repaired. और फिर उसके बाद जो आकार है उसे बदलने की जरूरत पड़ जाती है और यहां तक कि कहीं कहीं पर तो इतना भारी नुकसान होता है कि आप उसे बदल भी नहीं सकते. Offense is like a termite. और ये ठेस भी दीमक जैसा है. I want you to listen carefully. और चाहते आप ध्यान से सुने. Offense is like a termite, और ये ठेस जो है दीमक जैसा है which will get into your spirit, which will get into your soul, जो ये आपकी आत्मा में चला जाएगा, आपके प्राण में समाएगा and start working slowly but surely. And if you don't deal with it, if you postpone dealing with it, it will destroy you. और ये धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर से जो है आप में समाकर ये काम करेगा. और जब आप इसे निपटेंगे नहीं, अगर आप इसे निपटने में टाल देंगे तो ये आगे जाके यकीनन तबाह कर देगा आपको. There are many times बहुत बार when we look at ourselves, जब हम अपनी ओर देखते हैं says me, हम कहते हैं मैं where? कहां से, I am filled with the love of God. मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूं. Liar. झूठा.
That's why David prayed. और इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की। Now there are some people who are genuinely, they don't know. और देखिए ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई से देखिए इस बात को नहीं जानते। That's why David prayed. इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की। He says, show me my errors. उसने कहा कि प्रभु मुझे मेरी गलती मेरे दोष बता। खुदा की आंखों से आप बच नहीं सकते हैं। एक्सरे से बच सकते हो सर, एमआरआई से बच सकते हो, और ऐसे विभिन्न विज्ञान के आविष्कारों से जो टेक्निकी जो है ना चीजें, स्कैन वगैरह, उससे वो चीज निकल सकती है, लेकिन खुदा की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता है। So David went to God and said, God, show me my secret faults. Right? तो दाऊद परमेश्वर के पास गया और कहा परमेश्वर मेरे गुप्त पाप गुप्त दोष मुझ पर प्रकट कर। One of the things that you can do as a Christian, and this goes for myself as well, you go before the Lord and say, Lord, show me. Show me. There was a rich young ruler. और देखिए एक अमीर धनी शासक था। Is this blessing you already? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? He went to Jesus one day. एक दिन वो यीशु के पास गया And he says, Lord, और उसने कहा प्रभु I want to follow you. मैं आपके पीछे जाना चाहता हूं। Show me the one thing that I lack. और वो बताइए वो एक चीज जो मुझे करने की जरूरत है। Now he was like, perhaps he was a good man. और देखिए हो सकता है कि वो एक अच्छा आदमी था। And he goes to Jesus, the one who sees everything and from whom nothing is hidden. He goes to him and says, show me, Lord, what is the one thing that I lack? And Jesus just said, okay, here we go. देखिए वो यीशु के पास जाता है, वो यीशु जो सब कुछ देखता है, जिसकी आंखों से कुछ छुप नहीं सकता, वो यीशु के पास जाकर कहता है प्रभु मुझे दिखा वो एक चीज जो मुझे करने की He जरूरत puts है। his finger on that thing. यीशु अपनी उंगली उसी चीज पर रखता है। Boom. That's the very thing he cannot deal with. और वही चीज जिससे वो निपट नहीं सकता। He could have. कर सकता। He could have said, God, I can't deal it with my human strength. I need your grace. देखिए वो ऐसा कह सकता था कि प्रभु मैं अपनी इंसानी ताकत से तो इससे निपट नहीं सकता, लेकिन मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। So this morning, if we go further on, before we go further on, there are two things that you need to understand. Don't just assume that you're not the guy. You're not the person. देखिए ऐसा अंदाजा मत लगाइए कि आप वो व्यक्ति नहीं है। Me offense, no. Love oozes out of me. और मैं मुझे ठेस नहीं लगती, प्यार मेरे से उमड़ता रहता है बस। उमड़ता रहता, I like that, है ना? बाजू वाले को पूछो उमड़ता है क्या भाई? वो बोलेगा कभी नहीं, तेरे से तो नहीं उमड़ता है। Show me my secret faults, and the Lord will actually show you your secret faults. और मुझे मेरे गुप्त दोष बता, और देखिए परमेश्वर आपके गुप्त पाप आपके गुप्त दोष आप पर प्रकट करेगा। Not as a matter of judgment, but as a matter of correction. और देखिए आपका न्याय आपको दंड लाने के लिए नहीं, लेकिन सुधार के लिए। Now if you are like those Hindi movie guys, like you know, अगर आप वो हिंदी मूवी के जो लोग होते हैं ना, मेरा दिल साफ है, मेरा दिल साफ है, तेरा दिल किसने देखा है रे? The Bible says, बाइबल कहती है the heart is deceitful. और हृदय जो है ये धोखादायक है। Jeremiah, the heart is deceitful above all things. और दिल जो होता है, हृदय जो होता है, सारी चीजों से ज्यादा धोखादायक सिर्फ होता है। खुदा जानता है दिल के बारे में। So don't give these filmy dialogues, this filmy stuff, you know. तो ये फिल्मी डायलॉग सब नहीं देना है। मेरा दिल साफ है, मुंह खराब है। I'm a good person actually. मेरे दिल में कुछ नहीं है, जो भी कचरा है मुंह तेरे पे डाल दिया मैंने। No, don't give all that crappy dialogues, man. It doesn't ऐसे work. सब डायलॉग नहीं देना चाहिए। So today, तो आज deal with those things. उन चीजों से निपटिए। As your pastor, I want to bring out things that are practical and that will help you in your spiritual growth. Somebody, I need an amen over आपके here. पास बात होने के नाते ऐसी चीजें आपके सामने पेश करना चाहते हैं जो आप लागू कर सके और चीजों से निपट भी सके। I don't want to bring out a message that will tickle you. क्या अच्छा था? No, sir. ऐसे संदेश आपके सामने नहीं लाना चाहते जो आपको गुदगुदी लाते। ओह अच्छा That लगा। this message will make you go throughout the week and say, I need to deal with these things. और देखिए ये पूरा संदेश पूरे सप्ताह भर आप इसे लागू कर सकते हो और कह सकते हैं मुझे इन चीजों से निपटना है।
Lift your hands and pray in the Spirit. चलिए अपने हाथ उठाएं और आत्मा में प्रार्थना करें इस Lord, वक्त। open my eyes to see. प्रभु मेरी आंखें खोल देखने के लिए। Begin to pray. Begin to pray. चलिए प्रार्थना शुरू करें। Holy Spirit, move upon my life. पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में मंडरा। Help me, Lord, मेरी मदद कर to प्रभु। overcome in this area. इन क्षेत्रों में जय पाने के लिए। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी Give नाम me में। open ears to hear what the Spirit says. प्रभु मेरे कान खोल दे ताकि मैं सुन सकूं जो पवित्र आत्मा कहता Bring है। changes in my life. मेरे जीवन बदलावट को ला। Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let me go to the second point. चलो जा दूसरे मुद्दे पर। So, what is offense? और ये ठेस क्या है? Write this down. What is offense? ये ठेस क्या Now, है? I want to bring out a different definition about offense. देखिए ठेस के बारे में अलग-अलग परिभाषा को लाना चाहते हैं। Offense is understood, according to me, as the ease with which a person gets irritated, angry, or resentful. तुम्हारी क्षमता क्या है? Oh. और देखिए With the ease, how fast do you get irritated? और कितने जल्दी से आप एकदम चिढ़ सकते हो। How fast do you get offended? किसी का तवा गर्म होता है, बैटर डालो तो डोसा पक जाता है। Oh, you getting me, मामा? और वही आदमी कहते मेरा दिल साफ है। अरे तेरा दिल साफ है। People get offended लोगों को ठेस लग जाती है so easily. बहुत आसानी से। Tell somebody, किसी को बोलिए what is your level of tolerating offense? See, it becomes very quiet actually. ठेस को सहने का आपका स्तर क्या है? Somebody forgets your birthday. कोई देखिए आपका जन्मदिन भूल जाता है, Tomorrow you've got a potato face. फिर अगले दिन जो है आपका मुंह फूल जाता है। What happened? क्या हुआ? There's something wrong with your food? आपने जो चीज खाई थी उसमें कुछ नहीं, ये मेरा गड़बड़ था। स्टाइल है। Hello, are you listening, church? Yeah, you get offended for little things. छोटी छोटी चीजों में आपके ठेस लग जाती है। Now you are offended because I said that. और अब मेरे को बोल रहा लगता, हाँ, तेरे को बोल रहा है। Some people get offended. कुछ लोगों को ठेस लगती है, मला सांगते वाटतं, लगता है मुझे ही बोल रहे हैं। माझ्या साईडला दोनदा आला तो, मेरी और 2 बार आए हो, तुझ्या साईडला एकदाच आला। मला माहित आहे। मुझे पता है। अरे साइड में नहीं आएगा तो क्या पीछे जाऊं मैं? Some people get offended very easily. और कुछ लोगों को बड़ी आसानी से ठेस लग जाती है। तुमने हेलो बोला, उसने हेलो नहीं बोला। क्या आदमी है, हेलो बोला हेलो नहीं। अरे उसका पेट खराब हो गया रहेगा, बेचारा तकलीफ में है, वो जगह ढूंढता होगा। हर एक कश्ती किनारा ढूंढती है ना। I'm making it palatable for you, sir. You'll not know when you get cut today. आप नहीं जाने कब आप कट जाएंगे आज। Are you listening, church? Some people level of tolerating offense is very, very less. Your birthday, my God, no smile, foof. They don't talk to you. अरे मैं जिसको हेलो बोला, हेलो भी नहीं बोला यार, ऐसा ऊपर देख रहा था जीसस के पास। In the church, कलीसिया people में get offended easily. लोगों को बड़ी आसानी से ठेस लग जाती है। मेरे को मेरा फेवरेट सीट नहीं मिला, सीधा laughter is down. No, seriously, man. गंभीरता से कह रहे हैं इस बात को। Many years ago, देखिए कई साल पहले listen carefully. This सुनिए। is a true story. ये एक सच्ची कहानी है And I raise my hand up before God and I say, और परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाकर बोलते हैं। it's a true story, not an illustration. ये बड़ा चढ़ा के नहीं, लेकिन Many सच्ची years कहानी। ago, कई साल पहले I had just started the ministry. पासवान जी बताते इन्होंने अपनी सेवकाई की बस शुरुआत की And थी we had a few people. और तब थोड़े लोग थे। There was a man of God called John Rabindranath, whom I affectionately refer to as Daddy. तब परमेश्वर I के don't जन call everybody Daddy. डॉक्टर जॉन रविंद्रनाथ जी थे, जिनको पासवान जी बड़े स्नेह से जो है प्यार He से was डैडी कहते थे। a prophet. वे एक भविष्यवक्ता थे। And I don't call everyone a prophet. और He was a prophet. हर एक को पासवान जी भविष्यवक्ता नहीं कहते, लेकिन वे My भविष्यवक्ता goodness, जरूर थे। this man of God walked in a different realm. और परमेश्वर ये जन्म बिल्कुल अलग ही आयाम में चले थे। So one day, एक दिन long story short, so one man of God had organized a meeting very close to our house.
It was somewhere close to our place. So I went over there. तो परमेश्वर के जन दूसरे जन ने जो है वहां इनके घर के करीब ही कहीं पर एक सभा का आयोजन किया और ये And- पासवान जी गए वहां And it was told that pastors can come and sit on the chair. और इस तरह से वहां पर बोला गया कि जो जो पासवान गण है वे आकर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। So I went to move forward to sit on the chair. तो पासवान जी बस आगे निकलने वाले थे, वहां आगे जाके कुर्सी पर A बैठे। volunteer said, "आप इधर बैठो." लेकिन वहां के वॉलंटियर ने इनसे कहा आप यहाँ Now बैठो। please understand, I अब did मैं not have a बड़े- badge of a pastor. और इनके पास पासवान जी It was पास्टर not का- written on my head. ना इनके माथे पर लिखा था ना The इनका कोई volunteer बैज was था। doing a job because there was extremely a big crowd. और वहां के वॉलंटियर काम कर रहे थे क्योंकि उनकी अपेक्षा से बड़ी But भीड़ in आने my वाली है। young mind, back 20 or more years back, लेकिन 20 साल से भी ज्यादा समय पहले इनके दिमाग में ऐसा आया how dare you tell me to sit on the ground? और इसने कैसे मुझसे वहां And मैदान में बैठने के लिए I कहा was offended. और इनको ऐसा ठेस लगी थी, I mean it with all my पूरे heart. दिल से कहते हैं I was offended. इनको ठेस लग गई I थी, sat down. नीचे बैठे। But the preacher is preaching. लेकिन प्रचारक वहां प्रचार कर रहे थे, That same man of God. परमेश्वर के वही जन, But I was not receiving. लेकिन ये ग्रहण नहीं कर I रहे was थे। literally not able to hear what the man of God was saying. लगभग ये सुन ही नहीं पा रहे थे परमेश्वर जन वहां जो कह रहे थे इस बात को, Because क्योंकि in my heart, इनके दिल में I wanted fire to fall on the volunteer. इनकी तमन्ना ऐसी इच्छा हो रही थी कि वो वॉलंटियर पर परमेश्वर की आग उतर आए। Okay, never mind. You are Mother Teresa's lost cousin. Come on. Don't look at me ऐसे बोले हाँ मुझे अभी मालूम पड़ा है. You belong to the Mother Teresa family. Well, praise God. But I was not like that. I was wanting fire to fall on the volunteer, the anointing to hit him, and he would sit. और चाहते थे कि अभिषेक उन पर उतरे, आग उन पर उतरे और वो ऐसे ही क्या बाबा सब कुछ उतरना चाहिए. Exodus का सांप, you know. Tell your neighbor, if you missed that message, it's on YouTube. Exodus का सांप. We should call that message Exodus का सांप. So at that time, तो उस समय the पर Holy Spirit whispered. पवित्र आत्मा ने धीमी Now आवाज the में point is, the Holy Spirit always whispers. That's the problem. He doesn't shout, and that's why we don't listen to His voice. और असलियत यह है कि पवित्र आत्मा हमेशा धीमी आवाज में फुसफुसाता है, वो चिल्लाता नहीं, चीखता नहीं, और इसी वजह से हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते। सुन नहीं पाते हम लोग. Maybe there was a thunder, and if your thing shook, and you say, "Okay, talk to me." अगर कोई बिजली कड़की हो गई थी और देखिए आप हिल गए तो आप कहते हैं हाँ ठीक है बोलिए The मुझसे। Holy Spirit will whisper. इसीलिए तुम उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हो. And the Holy Spirit spoke. और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, He said, "Son, प्रभु ने कहा बेटे are you receiving?" क्या तुम ग्रहण कर रहे हो? Just these words. बस इतना ही वाक्य। I said, "No." इन्होंने कहा नहीं, That was it. इतना ही। My focus changed. इनका ध्यान बदल, I said, "Forget it. मैंने कहा भूल जाओ, Whatever happened, forget it. जो हो गया भूल जाओ, I'm here to receive." मैं यहाँ ग्रहण करने आया हूँ। That evening, no, wait. और सुनिए उसी शाम, That evening, उस शाम, nobody laid hands on me, और किसी ने पर हाथ नहीं रखे, but out of all those people, लेकिन उन सभी लोगों के बीच में I से, think I received the most. I'll tell you why. और इन्हें लगता है कि इन्होंने ज्यादा That ग्रहण किया man क्योंकि उस of दिन God was preaching a very simple message, परमेश्वर के वे जन बड़े एकदम सरल से संदेश को उन्होंने प्रचार but किया, he was talking about prayer life, लेकिन वो प्रातः how जीवन के बारे में बता रहे थे to grow in the things of God. कि कैसे परमेश्वर की चीजों में बढ़ना है। And the people over there, और वहां के लोग they had come for some masala, और कुछ मसाला पाने के लिए आए थे, job, नौकरी, healing. चंगाई, तो prayer किया उसने. उसने उन्होंने प्रार्थना की है, bless me or bless me. यहाँ वहां मुझे आशीष दो, But he was talking on a different realm. लेकिन वे अलग आयाम में बोल रहे थे, And I was the guy who was writing it और down. बाद में लिख रहे थे सब कुछ, Oh, after the meeting, और सभा के बाद में I went full. भर के गए, And I looked at the volunteer. और वॉलंटियर को देखकर बोले कहा, थैंक यू, नीचे बिठाया. और कहा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे नीचे बिठाया। Now that poor guy, अब वो बेचारा, मैं rich guy, okay, did not understand what I said. और वो इस बात को नहीं समझ सका कि Now इन्होंने here's दरअसल क्या the बोला। truth. सच्चाई सुने, One day, एक दिन that same man of God परमेश्वर के वही जन comes to my hall. इनके हॉल में आते हैं, I'm telling the truth. My wife सच्चाई is बता here. Then he comes to the my same hall. हमारे वो हॉल में That आते हैं, same man of God परमेश्वर के वही जन prophesies over me. इन पे भविष्यवाणी करते हैं। You will see Jesus. Of course, that was a different incident. You will see Jesus. You see, if I was offended, अगर इनको ठेस लग गई होती I would have moved out from there. तो उस जगह से निकल गए होते हैं, And I would have never got the blessing that I received.
और जिस आशीष को इन्होंने पाया था उस ठेस की वजह से नहीं पाए होते। शैतान जानता है, इसीलिए वो तुम्हें किसी न तो किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। सर, जब वो तुमको रोक नहीं सकता है, पाप से रोक नहीं सकता है, इस चीजों से रोक नहीं सकता है, ये हथियार वो यूज करेगा और बिलीवर्स को अपने सोर्स से, अपने आशीष से, अपने जो खुदा ने उसके लिए ऐसे लोग रखे थे उससे खुदा शैतान उनको अलग कर देगा। आई वॉर्न यू, आई वॉर्न यू। आपको चेतावनी देते I warn हैं, you. आपको चेतावनी देते हैं। दिस इज अ ट्रूथ। यह सच्चाई है। That same man, when I was meditating today, that same man of God prophesied. Mention, you know, we had this school of the Holy Spirit in Vikroli. Remember? And he would, Anita and I, we were just engaged that time. Sit down, thank you so much. So that these people know I'm not faking it. And he laid his hands on me and said, "You'll see Jesus." और उन्हीं पर हाथ रखकर कहा, तुम यीशु को देखोगे। I was like, okay, me see Jesus. ओह ठीक है, मैं I यीशु saw को देखूंगा। Jesus. इन्होंने यीशु को देखा। Now, whether you believe it or not, I don't care. और देखिए, चाहे आप विश्वास करें ना करें, परवाह नहीं पड़ता। How can you see Jesus? कैसे- Once कैसे? I saw Jesus, you go where you want to go. Don't go to Atal Setu, but यहाँ बोलना चाहिए ना ऐसा। तो बोले एक इधर भी जाने को बोलता है। I saw Jesus. इन्होंने यीशु को देखा। He's real. वो सच्चा है। Praise the Lord. Yes, that's it. अगर मैं ऑफेंड होता, अगर मुझे ठेस पहुंचती, वो जो आशीष मेरे पास आने वाली थी वो रुक जाती और मैं कभी शायद इस स्थान पे नहीं होता। You see, church, आप देखते कलीसिया, this is how dangerous offense is. और ऐसा ही खतरनाक होता है ठेस। And I want to tell you, everyone sitting over here, everyone listening to this message, I want to say this, that this is the weapon that the enemy uses against God's people. और देखिए, आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये वो हथियार है जो शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में इस्तेमाल करता है। How many of you think that the Holy Spirit is speaking to you? कितना सोचता है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। You may be an apostle, a prophet, an evangelist, a teacher, a worship leader, or whoever, do, whatever. आप चाहे प्रीत हो, भविष्यवक्ता हो, Anybody. शिक्षक हो, पासबान हो, आराधना के अगुवे, जो कोई भी आप क्यों ना हो, This message is for us. और ये संदेश हमारे लिए है। Write it down. लिख लीजिए। Go to the third point. तीसरा मुद्दे पे जाए Let's understand offense a bit now. और चल समझते हैं इस ठेस को Go थोड़ा। to Luke chapter 17, verse 1. Then he said to the disciples, "It is impossible." It is what? That no offenses should come. But woe to him through whom they come. It is impossible that no offenses should come. It is impossible. In other words, दूसरे no शब्दों में- matter who you are, फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, offenses will come. ठेस जरूर आएगा। Look at somebody and say, you will always get a chance to be offended. किसी को देखकर के हमेशा आपके सामने मौके आएंगे ठेस लगने के। लगने के मिलेंगे भाई। कितना भी गोड गोड बोला, किती पण गोड बोला, तुम्ही मांजरी सारखं खाली असं झुकाने लोकांना म्हणा जा माझ्यावरून, तरी ते ऑफेंड होणार। नो मॅटर व्हॉट, कम फर्क नहीं पड़ता। सिरियसली बोले मैं इतना किया तो भी, अरे होगा ही सर। मी त्यांना जेवण दिलं, मैंने उनको खाना दिया, काय काय दिलं। क्या क्या दिया। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Even if you die for them, they'll still be offended. बोले आज क्यों मरा? अगर आप उनके मरते भी तो भी वो कहें, उनको ठेस लगते कहेगी आज क्यों मरा। कल छुट्टी थी। अरे कुछ भी करो यार, पूरा दागिना वगैरह का तो बोला, कान का नहीं दिया। This is life. Jesus said, और यही तो it जीवन is है। impossible that no offenses should come. और यीशु ने खुद कहा यह तो असंभव है कि ठेस ना लगे। So don't think that you are doing so much that offenses will not come. तो ऐसा No. मत सोचिए कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो इसलिए ठेस नहीं आएगी। It will नहीं, come. आएगा। The master said it. स्वामी ने खुद कहा No है, servant is greater than the master. उसके सेवक जो है वो स्वामी से बढ़कर नहीं। The issue is not will the offense come. और देखिए मामला ये नहीं कि ठेस आएगा या नहीं। Write this down. लिख लीजिए How will you respond when it comes? कि जब ये आता है तो आपका प्रत्युत्तर कैसे होगा। Look at somebody and say, what is my response? किसी को देखकर के आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्रत्युत्तर क्या होगा। अभी मेरे को ऐसा लुक मत दोगे यार, like she's got the look. Yeah.
What will you do when that offense comes? जब ठेस आता है तो आप उसके बाद क्या करेंगे? Offense is not just what happens to you, it is a condition of your heart when it happens. और ठेस का मतलब ये नहीं कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन जब ये आपके साथ होता है तो आपके दिल की हालत कैसी होती है? Write this down. लिख लीजिए। Offense is not an event, it is a condition. और देखिए ठेस लगना ये कोई घटना या एक बार घटने वाली चीज नहीं है, ये तो देखिए बिना शर्त के आता है। Offense is not just an event, it is a condition. तुम्हारे हृदय, तुम्हारे दिल का हाल कैसा है? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। The moment a person gets offended, he or she starts avoiding those people. कैसा है? अच्छा है। जिस पल देखो स्त्री पुरुष ठेस खाने लगते हैं तो देखो उस व्यक्ति को वो नजरअंदाज करने लगेंगे। अच्छा है। तेरी आवाज ऐसे ना, अच्छा ऐसे ही आवाज है। तुम पीछे क्यों जाते हो? नहीं, लॉर्ड बोला। अच्छा तेरी तो लॉर्ड कुछ भी झूठ बोलता है। You see, this is a condition of the heart. और देखिए यही तो दिल की हालत होती है। Pastor, पासवान जी, have you been offended? क्या आपको कभी ठेस लगा है? How many want to know? किधर जानना चाहते हैं? You are smart. As a pastor, एक पासवान होने के नाते I have hour by hour updates to get offended. I get opportunities. इनको अवसर मौके मिलते रहते हैं। Doors open just like that only. दरवाजे बस ऐसे खुलते रहते You हैं। don't have to command also. Open, open. आपको आदेश देने की जरूरत नहीं, खुल जा खुल जा। ऐसे ही खुल जाता है। आपको कोई बुलाता है, किधर मीटिंग के लिए बुलाते हैं। हेलो, सच बोल रहा हूं। So I was in this meeting. पासवान जी सभा में थे। Can I speak? क्या बोल सकते हैं? See everybody. Yes, yes, speak. We want to बोलो, hear the हाँ, masala. हाँ, बोलो बोलो हम सुन रहे हैं। अच्छा, I'll tell you. As a pastor, एक पासवान the होने के more नाते higher you climb, write this down. Please write this down. जितने It will ऊंचा- save your life. Lord, take me higher, take me higher, take me higher. I'll tell you the danger of it now. जितना ऊपर easy गोली लगने के लिए. There's a price for the anointing. अभिषेक के दाम होता है चुकाने के लिए। Tell your neighbor there is a price for the anointing. अपने पड़ोसी से कहिए कि अभिषेक के लिए एक दाम No, चुकाना बोल होता जोर है। से बोल. There is a price for the anointing. अभिषेक के लिए एक दाम चुकाना होता है। There's a price for the anointing. And David was anointed and the Philistines heard. The word of God says. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद को अभिषेक किया गया तब फलिस्तियों ने सुना। Yes, yes. सुनिए। There's a price for the anointing. So when I went to this meeting, तो जब पासवान जी सभा में गए, okay, Pastor Ravi knows. This is just for, if you're watching, it's not for you, okay? अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। This is just for educational purposes. ये शिक्षित करने के लिए योजनानुसार बना है। Yeah, why not, man? क्यों नहीं? In MBA they give case studies. Didn't you do your MBA? Now listen to this. सुनिए इसे। So now they want me to pray for the pastors, तो वो चाह रहे थे for कि the team. पासवान जी है उनकी टीम के लिए प्रार्थना करें। Now I'm a senior pastor. अब पासवान जी वरिष्ठ I'm सीनियर the पासवान guest over there. और मेहमान के रूप में वहां बुलाया गया था इनको। So they announce, तो उन्होंने अनाउंस किया come on the stage. मंच पर। We go on the stage and stand. Now I'm asking them, और whom पासवान should I पूछे- pray for? कि इनके लिए मैं प्रार्थना करूं। Those people are not there only. वो लोग वहां थे ही नहीं। I look like a complete idiot. All the people are watching. आता हे प्रार्थना करणार आहेत. I asked him, बाबा प्रार्थना करणार आहेत, कुठे आहेत प्रार्थना करणारे लोक? Now this is like 3,000, 2,000, 3,000 people over. और यहाँ पे देखिए 2000-3000 लोग थे And you call the guest speaker. और आप मेहमान वक्ता को बुलाते हैं। You have seen what God can do, yes. आपने देखा जो You just परमेश्वर call पिछले the दिन person किया। on the stage. आप उन्हें मंच पे बुलाते हैं And in that time, और उस समय I had another door open for me to be offended. और वहां पर ठेस खाने का और एक दरवाजे के लिए खुल गया। The devil is saying, शैतान कह रहा है see how they are treating you. देखो कैसा तुम्हारे साथ वो, You are a man of God. तुम परमेश्वर के जन हो You are fasting whole day. और देखो तुमने पूरा दिन उपवास किया। Hello? They are not treating you properly. ये सही तरह से बर्ताव नहीं कर रहे तुम्हारे Just साथ। go down. बस नीचे जाओ। Throw some tantrum. Tantrum. Tantrum means थोड़ा आवाज करो. I stayed over there. वहां पे खड़े रहे As a man of God, परमेश्वर के जन के as a रूप pastor, में, एक पासवान के as a रूप में, leader, एक अगुवे के रूप as a Christian, में, एक मसीह के रूप में you will have many doors for you to be offended.
आपके सामने बहुत से दरवाजे खुलेंगे ठेस खाने के। Don't go through those doors. उन दरवाजों में से मत जाइएगा। कितने सुन रहे हैं? That's why इसलिए many Christians never grow in the anointing. बहुत सारे Never. मसीह कभी अभिषेक में नहीं बढ़ते, Never. कभी नहीं। Look at somebody and say never. किसी को देखकर कहे कभी नहीं। You claim to grow. आप दावा करते हैं बढ़ने का। डब्बा तेरा मुंह डब्बा जैसा बसता है खाली, कुछ नहीं। सच बोल रहा हूं सर। मैं बोल रहा हूं ना, एकदम सच बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग एक्टिंग करते, हालेलुया। क्या कोई बड़ा प्रचारक आएगा ना, उसके सामने ऐसा बिहेव करेंगे कैसे एंजल है। उनकी लाइफ को देख, कुछ नहीं होता है। I'm telling you sir. कह रहे हैं आपसे। और वो जो बेचारे लोग रहते ना, बेचारे ऐसे होता है, हाँ बात है, हालेलुया, बैठ उधर, हाँ बैठता हूं मैं। वो लोग ही प्रभु लेके जाता है आगे उनको। सच बोल रहा हूं, as a pastor for 27 years, I will tell you the truth. 27 साल से पासबानी का सेवा कर रहे हैं, लेकिन बता दे सच्चाई को। काय करायचं ब्रदर? झाडू मारू का आम्ही? हा मार झाडू मार, हा बस झाडू झाला, अजून काय मारू? Such are the people, simple people, they will grow in the anointing. सीधे साधे ऐसे लोग अभिषेक में बढ़ेंगे। That's why इसलिए God is moving in the villages and not in the city. परमेश्वर जो है शहरों में नहीं, लेकिन गांव में जबरदस्त काम कर रहा है। We in the city, we want to be appreciated. और हम शहर के लोग, हम चाहते हैं कि लोग हमारी सराहना करें, वाहवाही करें। हे पाळक साहेब आहे, त्यांना टाळ्या वाजवा जरा, ढोल वाजवा। आणि हे पाळकांचे पाळक आहेत, लीडर्स। पाळकाला पाळतात हे लोक, त्यांना जास्त वाजवा ढोल। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। That's people get offended. Look at somebody and say people get offended. किसी को देखकर लोगों को ठेस लगती है। मुझे नहीं मिला, मुझे उसको गले लगा, मुझे गले, अरे क्या गले लगाने का मिनिस्ट्री है क्या ये? अरे इसको गले लगा, तेरे को गले लेना है, तो जास्त क्लोज वाटते त्यांच्याशी ना। मला मला त्याला असं हक केलं, मला हक नाही केला। अरे करूनच तर मिनिस्ट्री आहे, हगिंग मिनिस्ट्री नाही रे बाबा। I'm telling you, in this 27 years, I could write a book. 1001 ways how to get offended. जो अनुभव मिले उसे लिख सकते हैं कि 1001। मैं आपको हंसा रहा हूं, क्यों मालूम है? शायद हंसते हंसते आपके बाजू वाला हंस नहीं रहा है तो समझ जाना है। सच बोल रहा हूं। Don't get, if you get mad at me, so be it. I have exposed you. This is the thing. Don't think only you get offended, even I get offended. ऐसा But महसूस है the आपको thing ठेस is लगती है। that the Holy Spirit will speak in a small voice, and that small voice, if you miss it, congratulations, you have missed God. पवित्र आत्मा आपको धीमी आवाज में आपसे बात करेगा, और आप उस आवाज से चूकते हैं तो सब बधाई हो, आप परमेश्वर से चूक गए। It's a condition of the heart. ये दिल की हालत होती It's है। a condition of the heart. ये दिल की हालत कैसी होती है? Look at somebody and say it's a condition of the heart. किसी को देखा कि आपके दिल की हालत होती है ये। The third one, and I close तीसरा। it. This is too heavy here. Write it down. लिख लीजिए। Offense reveals your inner lens. और देखिए, ठेस जो है आपके अंदर का जो नजरिया को दिखाता है। Offense is often a result how we interpret situations through our own perspective. Let me explain. अक्सर ये ठेस दिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति को किस तरह से उसका अर्थ निकालते हैं। Go with me to Proverbs 4:23 and then I'll explain. चलिए नीति वचन का चौथा अध्याय 23वां वचन फिर से हम बताएंगे। Keep your heart. Whenever the Bible speaks about the word heart, it speaks about the spirit man. और देखिए, जब भी बाइबल जो है शब्द हृदय यानी दिल के बारे में कहता है, तो ये आत्मिक मनुष्यत्व के बारे में कहता है। Keep your spirit man with all diligence, for out of it springs the issues of life. और देखिए वचन में लिखा, अपने दिल की यानी अपने आत्मिक मनुष्यत्व की पूरी सावधानी से रक्षा कर, क्योंकि जीवन के सारे स्रोत उसी से निकलते हैं। जीवन के क्या? सारे स्रोत, जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। तेरी जो प्रेयर लाइफ है उससे निकलती है। कोई लोग बोलते हैं ना, मेरी प्रेयर, प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, पूरा फुटबॉल गेम देख सकता हूं, प्रार्थना नहीं कर सकता, पूरा आईपीएल का मैच 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे जो भी है देख सकता हूं, लेकिन 10 मिनट की प्रार्थना नहीं होती है, पास्टर जमता ही नहीं है। आउट ऑफ इट स्प्रिंग द इश्यूज ऑफ लाइफ। जीवन के स्रोत उसी में से निकलते हैं। व्हाई इज इट दैट यू कैन डू एवरीथिंग एल्स?
You can go for a wedding and और क्यों ऐसा कि आप शादी में जा सकते हैं वहां पर but you cannot come to church. लेकिन आप फिर से नहीं आ सकते. There is a problem in the church. There are people in the wedding are speaking all the F's and the food and the beverage. Some people are asking, what is food and beverage? You should never know those words. The F's and the B's and all those nonsensical words. And तुम उधर उसके joke पे हंसते हो. You're laughing with them. But to come to church, कलीसिया में आने के लिए you have a problem. अब क्या समस्या होती है? Out of it springs the issues of life. और उसमें से जीवन के स्रोत निकलते हैं. I'm telling you, church, this is the problem. The spirit man. Look at somebody and says the spirit man. किसी को देखकर कहे आत्मिक Say मनुष्यत्व. everyone the spirit man. आत्मिक मनुष्यत्व. The spirit man. आत्मिक मनुष्य. अगर ये टीचिंग को आप ऐसा सोच रहे कि पास्टर मेरी पोल खोल रहा है, तो आप गलत हैं. जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो तुम उससे बोलते हैं ना, वो बड़ा वाला नाइफ ले लेना, वो गुदगुदी वाला नाइफ लेना, धीरे धीरे काटना, और सिलाना नहीं है, थोड़े से दम लगाना. Doctor, don't stitch me, a lot of pain. Put some gum and just put it. One day when you laugh, poof, it will come out there. Gum lagana. In the church today, a lot of gum laga rahe log. Gum lagana. You're telling the doctor what knife to use. आप डॉक्टर से कह रहे हैं कि कौन सा चाकू उसे इस्तेमाल करना है. You're telling the doctor, don't give me that white tablet. It's boring. Give me that pink and that green. Hey, that is cyanide. Don't tell the doctor what to tell, what to give you. और डॉक्टर को ये मत बता कि आपको क्या वो दे. Because the chief surgeon came in the morning and gave this medicine. Well, some people are wondering who's the chief surgeon. He gave me a diagnosis in the morning for the church. Says this is the medicine. Now you believe the prophecy. Oh, pastor, you prophesied, but you don't believe this. This is the prophetic word. आप भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं कि आप इस पे विश्वास नहीं करते. यही तो भविष्यवक्ताई वचन है. Pastor, I was just talking to the team inside. I said, sorry, I'm late. Didn't I say sorry to you guys? Now they didn't ask me a sorry. Pastor, हम लोग को sorry क्यों बोला? I said, sorry guys, I'm late today. I said, no, they say, no, pastor, it's okay. I said, no, actually what I was doing is, I was waiting upon the Lord. Correct? I'm waiting upon the Lord. मेरे पैजामे में घूम रहे शाकाला बारा बास सो प्रोदा के रिबो साता. Pastor Anita Singh, अरे जल्दी कर. Really, I'm telling you, it's tough being my wife. Because now, वो नवापुर का मैसेज में थोड़ा सा कुछ इधर थोड़ा सा मिर्ची डाल सकता है. But the thing is, I need a rhema word from the Lord. मामला ये है कि परमेश्वर से रेमा वचन की Now जरूरत you है. understand my problem. अब आप समझ रहे हैं समस्या को. I need a rhema word. ऐसा वर्ड जो लोगों को फाड़ दे. और वो वर्ड जो है उनकी जिंदगी बदल दे जो रिसीव कर रहे हैं. कोई खुदा से कह रहा है प्रभु मुझे कुछ तो बना. And God is making you, sir. अब परमेश्वर को बना रहा है जनाब. God is making you, sir. परमेश्वर को बना रहा I है. prophesy you will rise in the name of Jesus. भविष्यवाणी करते हैं आप यीशु के नाम में ऊंचा उठेंगे. Somebody say, I receive, I receive, I receive. घर करता हूं. The word is never to condemn. वचन कभी आपकी निंदा करने के The लिए word नहीं. is to convict. और वचन जो है आपको कार करने Keep के लिए. your heart, sit down. Keep your heart with all diligence. मतलब मेहनत लगेगी आपको. It is not going to be easy. ये आसान नहीं होगा. With all diligence. पूरी सावधानी से. हमारे कंपनी में हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं पूरा. Come on. हर एक प्रोसेस को नापते हैं. ड्यू डिलिजेंस एनीबॉडी? हाँ, थैंक यू सो मच. नहीं तो बोलेंगे कुछ भी बोलता है पास्टर. हर एक वाउचर देखते हैं, हर एक चीज देखते हैं. उड़ताल फुटाल सब कंप्यूटर उम्पटर. और फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस तो पूछो ही मत. With all diligence, that means it will take you some effort. It will take you to do something on your behalf. You just can't sit. इसका मतलब आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. सिर्फ आप ऐसे ही हाथ फैला के नहीं बैठ सकते. एक्सोडस का क्रो आएगा फिर. लास्ट टाइम सांप आया था.
That's why I'm making it light. Otherwise, you get too serious. इसलिए हल्का बना रहे हैं ताकि नहीं तो आप बहुत ही गंभीर हो जाएंगे. So if your heart is wounded, तो अगर आपका दिल घायल है, if your heart is insecure, अगर आपका दिल असुरक्षित है, every situation you will interpret according to that lens. तो देखिए हर एक Oh, हालात now को you're जो उसी understanding. नजरिए से आप उसका अंदाजा लगाएंगे. Now you're understanding. अब आप समझ रहे हैं. In the morning there was a fight मान लीजिए सुबह लड़ाई हो गया in your होगा house. घर में. Even a correction. Even your father's correction. सबके सामने क्यों बोला? तेरे को बाथरूम में लेके जाएगा बीच से. अरे बाप है रे तेरा, बोल दिया, छोड़ना, खलास. जब तू बाप होएगा तू भी ऐसे ही करेगा. तो बाप का ही बेटा है ना. आई तू असं केलं असं कशाला बोललोस? माझे फ्रेंड्सला काय वाटणार? काय वाटणार? जे काय वाटायचे वाटू दे. ते जेवण नाही देत, मी देते. त्यांना सांग 2 दिवस जेवायला. एक वडा इडली सांबार पाठवतील झोमॅटोवरून आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणतील मी प्रेयर करते म्हणून. No, don't get offended, man. ठेस मत खाओ. Don't get offended. Your mother. आपकी माँ. ए चले उधर रे कर. मम्मा फोनवर माझा होतोय. अरे असू दे तो. So you see, you get offended. A correction. Your mother corrects you. Your father corrects you. Your somebody corrects you. Even your pastor corrects you. सबके सामने बोलने का क्या? तेरे कान में बोलेगा आजा. कभी कोई प्रॉब्लम है कान में मत बोलो, लिख के भेजो. तेरी तो. A correction. Look at somebody and say a correction. किसी को देख रहा है सुधार. Said everyone a correction. एक सुधार. And the people of the world are tell us what's wrong with us, and we want to improve our product. और दुनिया के लोग हमसे ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खराबी हमको बताएं ताकि हम अपने प्रोडक्ट में सुधार ला सके. When you go to this is not an advertisement. When you go to this Global Fusion, this top whatever restaurant, the fellow will come. Sir, चटनी ज्यादा है, तीखा है, मीठा है. क्या रे इतना तीखा है? Sir, आपको 10% discount please. They are ready to take the correction. वो सुधार लेने के तैयार होते हैं. Come on, help me now. Help me चलिए. now. Some people are saying if there is a fault in the vehicle, send it back to us. और कुछ लोग कहते हैं कि Tell गाड़ी में us कोई what खराबी is हो wrong. तो हमें We वापस want to बताएं. improve. हम सुधार लाना चाहते हैं. And church is a place और कलीसिया वो जगह है where a correction is treated as an insult. जहां पर सुधार जो है एक अपमान और बेइज्जती के रूप में लिया जाता है. Think about what I'm saying. सोचिए इस बारे में जो कह रहे हैं. ए तू सी में गा रहा था लेकिन ऐसे लग रहा है डी में. Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया. Hey, you went little, you went little too much, huh? Too much. थोड़ा सा ज्यादा. In the world, संसार में I was in the band. पासवान जी बैंड में You थे. know how they used to talk? आप जानते कैसे वो बात करते. You fellow, you played the wrong beat, and you say thank you, man. They never talked without a bad word. बिना गाली गलौज के वो नहीं बोलते थे कुछ. In the band. बैंड में. So all the father mother is to come between the C chord. तो सी कॉर्ड के बीच में सारे माँ बाप आ जाते थे. अरे मी C chord वाजवते, तू का माझ्या आईला बापाला आणलंस मध्ये. But they are ready to listen. लेकिन वो सुनने के तैयार होते थे. I'm telling you the fact. हकीकत बता कभी रहे हैं. रिहर्सल को जाओ मत, okay? You will see how they talk. आप How the देखिए कैसे बात musicians talk. Any musicians over here? कोई म्यूजिशियन है यहाँ पे. At least, thank you. एकदम ऐसा बोले प्यारे, ऐसा कोई नहीं बोलता. अरे ठीक से बजाना येड़े. हाँ ठीक है वापस ले. In the dance, डांस में. in the secular dance, everybody talks like that. My dear. No, पूरा माँ बहन बीच में आ जाता है. A correction becomes an insult. This is the problem with the church of Jesus today. और Tell सुधार भी anybody बेइज्जती on the लगती है. internet, boss ऐसा मत कर, वो तेरे पीछे लगेगा. This is the problem. You see why? Because the heart is wounded. Everyone say the heart is wounded. क्यों? क्योंकि दिल घायल है. दिल घायल है, तो सब चीज जो है घायल दिखती है. When your heart is wounded, somebody say जब heart आपका is दिल wounded. घायल होता है तुम ऑफिस का गुस्सा घर में निकालते हो. Praise the Lord.
प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं यहाँ A पर, delay becomes you feel it as rejection. थोड़ी सी देरी हो जाना आपको ऐसा लगाएगा जैसे कि आपको ठुकराया गया हो। ठुकराया गया। Is this helping you, sir? क्या आपकी मदद कर रही है? Silence becomes hatred. और खामोशी आपको नफरत लगेगी। I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया। The problem is not the situation, it is the lens. और देखिए समस्या जो है वो परिस्थिति नहीं, हालात नहीं, लेकिन नजरिया I है। want to talk to some young couples over here and to the young at heart couples over here. Young couples and दिल के जवान. दिल के जवानों को ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन जो जवान लोग हैं उधर तोड़ फोड़ करके सब लोग सुनाई देता है सोसाइटी में। जो दिल के जवान हैं उन लोग आवाज नहीं आता है, लेकिन उधर ज्यादा लफड़ा होता है। हम नहीं अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Yeah? Those are married for 20 years, 15 years. They don't fight openly. जिनकी शादी हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, They देखिए are the silent sufferers. They only go in the mysteries. Somebody saying preach it. And only the children know about it. सिर्फ बच्चे लोग ही जानते हैं इस They बारे are में। not talking to each other for months and weeks. और हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों बात नहीं करते किसी से। Silence becomes hatred. और खामोशी जो नफरत का रूप ले लेती है। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस When वक्त। the heart is wounded, everyone says the heart is जब wounded. दिल घायल होता है Everything looks distorted. और सब कुछ वैसे ही नजरिए से दिखता है। अगर तुम्हारे चश्मे का लेंस अगर गंदा है ना तो सब चीज गंदी लगेगी आपको। अगर आपके चश्मे का रंग हरा है ना तो सूखी घास भी खा लोगे आप। That's why you fall for anything. और इसीलिए किसी भी चीज में आप फंस जाते हैं। That's why young girls fall for anything, young boys fall for anything moving in skirts. Because your lens. क्योंकि आपका नजरिया, You've not received love from your family, from your father. So you're not that kind of a person. You're just looking for love. How many understand right now? और कितना समझ रहे हैं इस वक्त। You one relationship क्या टूट गया? You feel that the world is against you now. एक रिश्ता आपका टूट गया तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई अब। No, sir. नहीं जनाब। There are people out there who love you and they will come into your life. और ऐसे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और I'm आपकी talking जिंदगी to में the young आएंगे। people right now. Praise the Lord. प्रभु स्तुति I हो। want to talk to the leaders. Because there is one bad apple in your leadership, that does not mean the entire thing is bad. The problem is not the situation, the problem is the lens. और देखिए समस्या जो है स्थिति नहीं लेकिन नजरिया है। Look at somebody and say, clean your lens. किसी को देखकर के अपने नजरिए को साफ कर लो। Said everyone, clean your lens. सभी लोग अपने नजरिए को साफ कर That's लो। why the Bible says the pure in heart will see God. और इसलिए बाइबल के जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। Something happens to your spiritual eyes. कुछ तो होता है आपकी आत्मिक आंखों में। Something happens to your spiritual eyes. कुछ तो होता है आपकी आत्मिक If आंखों you में। want to move in the realm of the spirit, you need to cleanse your spiritual lens. आप आत्मिक आयाम में बढ़ना चाहते हो, जरूरी है कि आप अपने आत्मिक नजरिए को शुद्ध करें। The pure in heart will see God. It's not like Jesus will come say, hello, I am Jesus. जो No, दिल no, के no, शुद्ध no. है। You will see God moving. जो Hallelujah. दिल के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, देखिए आप परमेश्वर काम करता हुआ देखेंगे। Your heart is wounded. Your heart is offended. That's why God does miracle. Come on, help me right now. आपका दिल घायल है, आपका दिल ठेस खाया है, इसलिए परमेश्वर काम करता है। Pharisees के सामने टेढ़ा हाथ सीधा हो गया, उसको बोले इसको मारो। अरे भाई टेढ़ा हाथ सीधा हो गया, बोले वो छोड़ इसको मारो। बोले लेपर चंगा हो गया, ने बोले उसको मारो। और तेरा बीवी का भाई चंगा, उसको मारो। Your heart is not right. आपका दिल सही स्थिति में नहीं। The Pharisees and Sadducees, the blessed are the pure in heart, for they shall see God. They shall see the acts of God. They shall see God moving. They shall see the prophetic. Lift your hand and say, I receive, I receive. जो दिल के शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे, वे परमेश्वर कार्य को देखेंगे, वे परमेश्वर भविष्यताएं कायाम को देखेंगे। इतने सारे आशीष तेरे बाजू में है, तुझे दिखते नहीं है। जो खराब है वो ही दिखता है। Said everyone. सभी लोग कहे The lens is the problem. नजरिया ही Say it समस्या है। again. One last time louder. एक आखिरी बार जोर से। The lens is the problem. देखने का नजरिया है। सब लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। अरे तेरे पीछे कौन लोग आया हुआ है? तू क्या रोनाल्डो है क्या? तेरे पीछे सब लोग तेरे आगे, तू ही पीछे है। मेरे पीछे लगे हुए, कोई तेरे पीछे नहीं लगा। You're trying to be relevant.
That's why you're doing some nonsense. आप सोच रहे हैं कि आप असरदार हो, इसलिए आप कुछ बेतुका चीज कर रहे हैं बस. Nobody is bothered. किसी को परवाह नहीं. बाजू वाले को बोल, तेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ है. कोई नहीं लगा हुआ है तेरे पीछे. Check your heart today. आज अपने दिल को जांच लीजिए. Say it everyone, check your heart today. सब लोग अपने दिल को जांच लो आज. Write it down. लिख लीजिए. Many people think they can be offended only with people. I'm closing now. और देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि लोगों को जो है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको सिर्फ इंसानों से ही ठेस लगेगी. You can be offended at God also. देखिए आप परमेश्वर से भी ठेस खा सकते हैं. Write it down. लिख लीजिए. You can be offended at, जोर से बोलो. You can be offended at God also. परमेश्वर भी आप देखिए गुस्सा हो सकते हैं, आप ठेस खा सकते हैं. Example number 1, write it down. पहला उदाहरण लिख लीजिए. David, दाऊद. when he was bringing the ark of God, देखिए जब परमेश्वर के संदूक को ला रहा था, Uzzah died. तब उज्जा मर गया. David was offended. और वहां पर दाऊद को ठेस And लगी. he would not bring, it's not could not, he would not bring the ark of God और into देखिए फिर Jerusalem. परमेश्वर के संदूक को वो जो यरूशलेम में लाना नहीं चाहा. ऐसा नहीं कि ला नहीं सकता था, लेकिन लाना नहीं ला चाहा. नहीं सकता था, ला सकता था, लेकिन वो लाना नहीं चाहता था. Example number 2, दूसरा मुद्दा, when you pray for something जब किसी चीज के लिए प्रार्थना करते and हैं it does not happen, और वो चीज होती नहीं, now अब you are offended at God. आप परमेश्वर पे गुस्सा हो जाते हैं. Help me somebody to preach this चलिए कोई तो message. मदद करे संदेश को प्रचार करने के लिए. I prayed for Sheila. मैंने शीला के लिए प्रार्थना की Sheila got married to Harry. और शीला की शादी हैरी से हो गई. What is this, Lord? ये क्या है प्रभु? You foolish fellow. If Sheila would have got married to you, अगर शीला की शादी तुमसे हो गई होती, all the hair on your head would go away. तुम्हारे सिर के सारे बाल चले गए होते. God has kept a good girl for you. परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी लड़की को रखा है. God knows whom to give us. परमेश्वर जानता है कि इसे हमें देना है. Hey, बोल जोर से, praise the Lord. क्या प्रभु स्तुति हो. So you can be, I just made a joke out of it, but please understand, sometimes we are not offended at people, we are offended at God. कभी कभी देखिए क्या होता है कि हम लोगों We पर, are offended at God. हम परमेश्वर पे गुस्सा हुए होते हुए, और हम लोग बोल नहीं सकते, God I'm offended at you. बिजली आएगा. ऐसा नहीं बोल सकते ना अमिताभ बच्चन जैसा, किधर है तू, क्या है तू, नहीं बोल सकते. वो दारू पिया था. हम लोग तो पी भी नहीं सकता है. Some people just got up just now. कुछ लोग अभी भी उठे. You are offended at God. आप परमेश्वर पे गुस्सा हुए Many होते हैं. of you are offended at God. आप में से बहुत सारे परमेश्वर पे गुस्सा है. How many of you are offended at God? आप में से Stand up. कितने खड़े हो जावे लोग. This is your confession. ये आपका Don't have to कबूलनामा say है. anything. Sorry. Morning the surgeon came in my room. Now there are some people, Lord, I'm standing from inside. और कुछ लोग जो कह रहे हैं प्रभु मैं अंदर से खड़ा हो रहा हूं. मैं अंदर से खड़ा हूं प्रभु. कैमरा चल रहा है इसलिए मैं नहीं खड़ा होता हूं. एक लोगों को मत बता रहे, मेरे ऊपर ही डाल कैमरा. हमारा मीडिया टीम बहुत स्मार्ट है. इस टाइम पर स्टैंड अप. Those people who are offended at God. वे लोग जो परमेश्वर पे बौखलाए हुए गुस्सा है, खड़े हो जाए. Lift your hands and say with me. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें हमारे साथ. Lord, I'm offended at you. प्रभु मैं आप पर गुस्सा हूं, Help me. मेरी मदद कर. Just pray. प्रार्थना करें. कोई को कहता है कि खड़ा रहना जरूरी है. हाँ, क्योंकि आप खुला बोल रहे हैं. इतने सारे भीड़ में आप सब लोगों को सामने बोल रहा हो. बाजू वाला बैठेगा आपको बोले ये ऑफेंडेड गॉड है, लेकिन वो खुद ऑफेंडेड है, खड़ा नहीं रह रहा है. You're offended at God because तेरा काम नहीं हुआ, तेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. And today I pray to God और आज परमेश्वर से प्रार्थना करते that हैं God will move in your life powerfully. और परमेश्वर पे जीवन में सामान्य तौर पे काम करेगा. आज Can you just pray that God open my eyes आप प्रार्थना करें परमेश्वर मेरी आंखें खोल, to see what you want me to see. वो देखने के लिए जो तू चाहता है कि मैं देखूं. Sometimes we are at the wrong, hitting the wrong target. कभी कभी हम निशाना गलत जगह लगा रहे होते हैं. Sometimes we are not listening. कभी कभी हम सुन नहीं रहे होते. That's why things can be delayed. Sit down. इसलिए चीजें में May the Lord bless मिलने you. में Give देरी them हो a big hand right now. चलो जोर तालियां बजाएं इनके लिए.